آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف FDA کا کریک ڈاؤن جاری۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 2 ہوٹلز کے لائسنس کیے گئے معطل۔ منریگا کی جگہ مرکزی حکومت نے متعارف کروائی BB گرام یوجنا۔ تعلقہ کنڑ کے موضع نادر پور میں مذکورہ اسکیم کا باضابطہ کیا گیا افتتاح۔ ون میں گاڑیوں کے داخلے کو روکنے سٹی چوک میں پولیس نے لگائے بیریکیڈز۔ گاڑیوں کا داخلہ تو نہیں ہوا بند، مگر بیریکیڈز کی آڑ میں لگنے والی گاڑیوں سے سڑک ہو گئی مزید تنگ۔ ٹریفک میں رکاوٹ سے شہریان پریشان، توجہ کا مطالبہ۔ اور خواتین کو تندرست اور چاق و چوبند رکھنے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر مستحکم بنانے جالنہ میں منعقد کیا گیا ہرکنی مہوتسو۔ ضلع کلکٹر اشیما متل نے کی حاضرین کی رہنمائی۔ خبریں تفصیل سے۔ عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف FDA ڈپارٹمنٹ کا کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے تحت 2 مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ عملے نے 2 ہوٹلوں کے لائسنس معطل کر دیے۔ ذرائع کے مطابق شہر کے مشہور ریسٹورنٹس یلا یلا اور آئچا گاوات نامی 2 ریسٹورنٹس پر FDA ڈپارٹمنٹ کے عملے نے چھاپہ مارا۔ جانچ کے دوران کچن میں کئی سنگین خرابیاں پائی گئیں، جس کے بعد دونوں ہی ریسٹورنٹس کے لائسنس اگلے حکم تک معطل کر دیے گئے۔ ودیا نگر کے یلا یلا ریسٹورنٹ میں بٹر چکن کباب اور چکن لالی پاپ کی گریویوں میں کیمیکل والے رنگ استعمال کیے جا رہے تھے۔ FDA کی ٹیم نے ایسے 20 سے 25 ڈبے ضبط کر کے ضائع کر دیے۔ اینٹ کھیڑا کانچن واڑی کے آئچا گاوات نامی ریسٹورنٹ میں مینو میں بٹر نان لکھا تھا، لیکن اصل میں مکھن کی بجائے وہاں سستا ویجیٹیبل اسپریڈ استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جوس بنانے کے لیے پھپھوندی لگے آم اور سڑی ہوئی سبزیاں بھی رکھی گئی تھیں۔ FDA کے افسران نے فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر یہ کارروائی انجام دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں ایسے ریسٹورنٹس کے خلاف آگے بھی سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شدید بارش اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر میونسپل انتظامیہ نے شہریان سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد سے ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے، درخت گرنے اور نشیبی مقامات پر مسائل پیدا ہونے کی شکایات انتظامیہ کو موصول ہوئی ہیں، جن پر میونسپل انتظامیہ نے فوری کارروائی کی۔ ذرائع کے مطابق وویکانند کالج کے پچھلے حصے میں ایک بڑا درخت گرنے سے ٹریفک متاثر ہو گیا تھا، تاہم فوری کارروائی کے بعد راستہ بحال کر دیا گیا۔ اسی طرح وجے نگر کی جے درگا سوسائٹی، نیو ہنومان نگر کے اشٹ ونائک مندر کے قریب، الکا نگری کے اگستی ہوم کے سامنے اور سڑکو کمیونٹی ہال N3 کے قریب واقع اسپتال کے انڈر گراؤنڈ حصے میں پانی جمع ہونے کی شکایات موصول ہوئی تھیں۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچے اور پانی نکالنے سمیت ضروری کارروائیاں انجام دی۔ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ سیل کے مطابق گزشتہ روز شہر میں تقریباً 36.08 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دریں اثنا میئر سمیر راجورکر اور میونسپل کمشنر امول ایڈگے نے ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کنٹرول روم کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، ڈپٹی کمشنر و ڈیزاسٹرز مینجمنٹ شعبے کے سربراہ انکش پانڈھرے اور سیل انچارج سوپنل سردار بھی موجود تھے۔ میونسپل انتظامیہ نے شہریان کی مدد کے لیے ڈیزاسٹرز کنٹرول روم کے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ انتظامیہ نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ شدید بارش کے دوران ندی، نالوں، پلوں، نشیبی علاقوں اور پانی جمع ہونے والی جگہوں سے دور رہیں، تیز بہاؤ والے راستوں پر گاڑی نہ چلائیں، بجلی کے کھمبوں اور کھلے تاروں سے محفوظ فاصلہ رکھیں اور صرف سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ میونسپل کارپوریشن نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر کنٹرول روم سے رابطہ کیا جائے اور بچوں، بزرگوں اور خصوصی افراد کی حفاظت کا خاص خیال رکھا جائے۔ گزشتہ روز ہوئی تیز برسات کے سبب پشپا نگری علاقے میں موجود شمشان بھومی کی حفاظتی دیوار ٹوٹ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی کارپوریٹر کیرتی مہندر شندے وہاں پہنچی اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد میونسپل انتظامیہ سے
ठोस कदम उठाने की अपील की। शहरियान का इल्ज़ाम है कि यह हादसा इलाके में एसटीपी प्लांट के लिए बंद बांधकर पानी रोकने की वजह से पेश आया है। बुध के रोज़ शहर में चंद घंटों के अंदर मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान खाम नदी के किनारे पानी के बहाव में अचानक इजाफा होने से पुष्पा नगरी शमशान घाट की दीवार मुनहदिम हो गई और पानी अंदर दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में शमशान जोगी ख़ानदान के घरेलू इस्तेमाल का सामान तबाह हो गया। मकामी कारपोरेटर कीर्ति महेंद्र शिंदे ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। शमशान घाट में चारों तरफ पानी जमा होने की वजह से आखिरी रसूमात के लिए नस्ब टीन शेड के अतराफ तालाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पुष्प नगरी शमशान घाट शहर के मसरूफ़ तरीन शमशान घाटों में शुमार होता है, जहां शहर के मरकज़ी और ख़दीम इलाक़ों से बड़ी तादाद में लोग आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं। इसलिए कारपोरेटर कीर्ति शिंदे ने हिदायत दी है कि जल्द अज जल्द नई हिफाजती दीवार तामीर की जाए ताकि बारिश का पानी दोबारा अंदर दाखिल ना हो सके। मागं डॅम बांधलेले मॅडम, डॅम बांधल्यामुळं पूर्ण हे पाणी साचलेले जेवढं सिटीचं मेन नाला आहे, सिटीतलं मेन नाला असल्यामुळं ते पूर्ण सिटीतलं पाणी ह्याच नाल्याला येतो. ते डॅम बांधल्यामुळं डॅमचं पूर्ण पाणी रिटर्न मारून ते बीम कोसळलेली तिथून पूर्ण रिटर्न मारून पूर्ण गुढ्याच्या वरती पाणी पूर्ण लगे गरममध्ये पाणी. तो डॅम आता वापरण्याचं काही आहे का त्यात? महापालिका काही यूज होतो का त्याचा? उपयोग आहे का? सध्या तर यूज होत नाही, पावसाळ्यात यूज नाही करत ते. पावसाळ्यात यूज होत नाही, फक्त उन्हाळ्यामध्ये थोडाफार. आणि हे काही शौचालय आहे का? विकसित भारत रोजगार उपजीविका गारंटी स्कीम के तहत एक प्रोग्राम तालुका कन्नड़ के मौजे नादरपुर में रखा गया, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट बीडीओ वीबी पंडित के हाथों किया गया। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत ने महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार गारंटी स्कीम की जगह विकसित भारत रोज़गार और उपजीविका गारंटी अभियान नामी स्कीम मुतारिफ कराई है, जिसके इफ्तिताह के लिए तालुका कन्नड़ के मौजे नादरपुर में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह पंचायत समिति कन्नड़ के असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीबी पंडित के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर अफसरान, तकनीकी माहिरीन, ग्राम रोज़गार संगठन के अहदेदारान और ग्राम रोज़गार सहायक बड़ी तादाद में मौजूद थे। हुक्काम ने स्कीम के मकासद और फ़वाइद के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक अहम करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें ग्राम रोज़गार असिस्टेंट्स को कम अज़ कम 10,000 रुपये माहाना एजाज़ देने का मुतालबा करते हुए तजवीज़ मंजूरी के लिए हुकूमत को भेजने का फ़ैसला किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की मद में 30 जून तक 66 करोड़ 72 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल ज़राए का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली के लिए अब भी खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत बिग डिफ़ॉल्टर्स के प्रॉपर्टी सील की जा रही हैं। लिहाजा शहरियान वक्त पर टैक्सेस अदा करके म्यूनसिपल इंतज़ामिया से ताउन करें और शहर की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से माली साल 2026-27 के दौरान जायदाद टैक्स और पानी पट्टी के वसूली मुहिम को शहरियान का मुस्बत ताउन हासिल हो रहा है। ज़राए के मुताबिक 30 जून 2026 तक मजमूई तौर पर 66 करोड़ 72 लाख रुपये की वसूली की गई है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया के मुताबिक इस साल पहली बार जून के महीने में बकायदारों के ख़िलाफ़ ज़ब्ती कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जारी टैक्स वसूली मुहिम के तहत 64,497 जायदाद मालिकान ने प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 60 करोड़ 1 लाख रुपये जमा करवाए हैं, जबकि 20,000 मकान मालिकान ने पानी पट्टी की मद में 7 करोड़ 72 लाख रुपये अदा किए हैं। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान 60,800 शहरियान ने 59 करोड़ 95 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया था। इस तरह रवा साल वसूली में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 30 जून को एक ही दिन में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 2 करोड़ 24 लाख रुपये और पानी पट्टी की मद में 13 लाख रुपये समेत मजमूई तौर पर 2 करोड़ 37 लाख रुपये की वसूली की गई है। जोन वाइज कारकर्दगी में जोन नंबर 5 ने 12 करोड़ 5 लाख रुपये की वसूली की है और पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि जोन नंबर 7 ने 10 करोड़ 21 लाख रुपये के साथ दूसरे और जोन नंबर 9 ने 8 करोड़
10 लाख रुपये के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। फीसदी इजाफे के एतबार से जोन नंबर 10 ने 48.44%, जबकि जोन नंबर 3 ने 43.05% इजाफे के साथ नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे ने शहरियान से अपील की है कि वो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी फौरी अदायगी करके शहरी तरक्याती मंसूबों में ताउन करें। दूसरी जानिब मेयर समीर राजुलकर ने उम्मीद जाहिर की है कि खुसूसी मनसूबाबंदी और मुसलसिल मुहिम के ज़रिए आइंदा दिनों में टैक्स वसूली में मज़ीद इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक किसानों की दहलीज पर नामी प्रोग्राम के तहत बैंक मुलाजमीन पानकनेर पहुँचे और वहाँ किसानों को बैंक सर्विस फराहम की। तालुका सेनगांव के खाम्बा सिंधी गांव में पानकनेर गांव शाख के ब्रांच मैनेजर RM शिरसाट, ब्रांच अकाउंटेंट PN खंदारे और सेक्रेटरी मगर ने गांव का दौरा किया और बैंक आपके घर नामी मुहिम के तहत मुख्तलिफ बैंकारी खिदमात फराहम की। इस इक़दाम के ज़रिए ज़रई क़र्ज़, बैंक से मुताल्लिक़ दीगर मामलात और ज़रूरी खिदमात गाँव में ही किसानों की दहलीज पर फराहम की जा रही है। इससे किसानों में इत्मीनान पाया जा रहा है क्योंकि उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। गांव के लोगों ने बैंक मुलाजमीन का खैर मकदम भी किया और इस इक़दाम को सराहा। गावामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँक आपल्या दारी हा उपक्रम राबविण्यात आला। त्यामध्ये शेतकऱ्याचे जे PM किसान योजनेचे 2-2 हजार रुपये आहेत, शेतकऱ्यांना जे जाण्या येण्याचा वेळ होता तो शेतकरी आज पेरणीसाठी म्हणजे शेतामध्ये राबतोय, त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा बराचसा फायदा झाला। बऱ्याच शेतकऱ्यांनी PM किसान योजनेचे आज आपल्या गावामध्ये 2-2 हजार रुपये बऱ्याच शेतकऱ्यांनी काढले। शासन आपल्या दारी आणि घरपोच पैसे मिळून दिले शेतकऱ्यांना, त्याबद्दल सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक परभणी आमचे कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय सरव्यवस्थापक श्री कुरुंदकर साहेब आणि विभागीय अधिकारी श्री सुधाकर कावटे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यामध्ये सर्व शेतकरी यांना आज रोजी पेरणीची मशागतीसाठी त्यांना सकाळीच शेतीचे काम करण्यासाठी शेतात जावं लागतं। त्यामुळे शेतकऱ्यांना जे शेती पिकासाठी जे लागणारी अत्यावश्यक कृषी साधनं जे हारात पीक खतं वगैरे बी बियाणे यांच्यासाठी शहरी भागाकडे विशेष म्हणजे वेळ त्यांना भरपूर अडचणी बसीच्या अडचणी, त्याच्यामुळे त्यांना बँकेपर्यंत पैसे काढण्यासाठी येऊ शकत नाही। त्याच्यामुळे आमच्या परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक परभणी हिंगोली मार्फत श्री सरव्यवस्थापक साहेब, सन्माननीय सरव्यवस्थापक साहेब आणि विभागीय अधिकारी साहेब यांनी बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना गावात जाऊन प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरपोच PM सर शेतकऱ्यांना 20,000 पर्यंत आमची लिमिट आहे पैसे देण्याची आणि अत्यावश्यक 20,000 रुपये देऊ आणि प्रत्येक शाखेत येऊन त्यांना इतरही जास्ती पैसे जर लागत असतील तेही पैसे देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। नाजरीन, जूना बाज़ार से शाहगंज जाने वाली सड़क किसी ज़माने में वन वे हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों इस सड़क पर वन वे तोड़कर गाड़ियां दाखिल होने लगी हैं। लिहाजा वन वे तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने की गर्ज से पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स की वजह से व्हीकल सवारों का वन वे में दाखिला तो बंद नहीं हुआ, इसके बरक्स ये बैरिकेड्स इंक्रोचमेंट बढ़ाने में मददगार साबित होने लगे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये जूना बाज़ार से शाहगंज इलाके को जाने वाली सड़क की हैं, जो किसी ज़माने में वन वे हुआ करती थी। इस सड़क पर सिर्फ शाहगंज से जूना बाज़ार जाने वाली गाड़ियां ही चलाई जाती थीं, लेकिन इन दिनों ये सड़क 2 वे बनकर रह गई है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। सिटी चौक पुलिस स्टेशन से करीब पुलिस इंतज़ामिया ने वन वे में आने वाली गाड़ियों पर काबू पाने की गर्ज से बैरिकेड्स लगा रखे हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगाने के बावजूद वन वे में गाड़ियों का दाखिला बंद नहीं हुआ है। उसके बरक्स ये बैरिकेड्स यहाँ इंक्रोचमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सड़क मज़ीद तंग होकर रह गई है। यही नहीं, आज से 2 दहाइयों कबल यहाँ
डीपी प्लान के तहत कार्रवाई की गई थी और रास्तों में हायल मकानात मुनहदिम करके इस सड़क को कुशादा किया गया था, लेकिन सड़क के दरमियान मौजूद बिजली के खंभे आज तक हटाए नहीं गए, जिसकी वजह से इन खंभों की आड़ में या तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं या फिर ठेले वाले अपना ठेला लगाकर कारोबार करने लगे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में मज़ीद रुकावटें पैदा हो रही हैं। शहरियान का म्यूनसिपल इंतज़ामिया से सवाल है कि आखिर सड़क में हायल बिजली के खंभे कब हटाए जाएंगे। इसी तरह से वन वे में गाड़ियों का दाखला रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे ट्रैफिक की रुकावटें ख़त्म हो जाएं। जालना डीपीडीसी की जानिब से फराहम करदा फंड से जो रास्ते तामीर किए गए थे उनमें बड़े पैमाने पर बदعنوانیوں का मामला मंजर आम पर आया है, लिहाजा ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 200 से ज़ायद मामलात की तहकीक़ात का हुक्म दिया है। जालना में ज़िला मनसूबाबंदी कमेटी यानी डीपीसी के फ़ंड से सड़कों की तामीर के बग़ैर ही लाखों रुपये के बिल निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है। इस पस मंज़र में ज़िला भर में 200 से ज़ायद सड़कों के तामीराती कामों की तहकीक़ात का हुक्म दे दिया गया है और जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ज़िला मनसूबाबंदी कमेटी के फ़ंड से देही सड़कों की तरक्की और मजबूती के लिए किए जाने वाले कामों में बड़े पैमाने पर बदعنوانیوں की शिकायत ज़िला परिषद को मौसूल हुई है। इन शिकायत में इंदेवाड़ी से सरसवाड़ी सड़क का मामला भी शामिल है, जहां सड़क की तामीर किए बगैर ही लाखों रुपये का बिल निकाल लिया गया। ज़िला परिषद के सीईओ डॉक्टर कृष्णकांत कंवरिया ने भी इस बेज़ाब्तगियों की तस्दीक की है। इस इंकशाफ के बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के फ़ंड से मुकम्मल किए गए 200 से ज़ायद तरक्याती काम शक व शुबहात के दायरे में आ गए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस मामले में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी ज़िम्मेदार शख्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। जालना म्यूनसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब रमा नगर इलाके की आवाम को मुश्किलात का सामना है और वो म्यूनसिपल कमिश्नर से फौरी राहत फराहम करवाने का मुतालबा करने लगे हैं। रमाबाई नगर के साकिनान ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ की आवाम शदीद मुश्किलात और कर्ब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाके की मरकज़ी सड़क गंदे पानी और कीचड़ से भरी हुई है, जिसकी वजह से ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग रोज़ाना ख़तरात मोल लेकर आमदरफ्त करते हैं। मकामी रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया और न ही मुंतखबा अवामी नुमाइंदे इलाके में नज़र आते हैं। गुज़िश्ता साल बारिशों और सैलाब ने लोगों के घरों और रोज़गार को शदीद नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अफसोस कि इस साल भी निकासी आब और बुनियादी सहूलतों के हवाले से कोई खातिर का इंतज़ाम नहीं किया गया है। शहरियान ने फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत, पानी की निकासी के मौसर इंतज़ामात और ज़िम्मेदार हुक्काम की जवाबदेही का मुतालबा किया है। तर आमची ही मागणी आहे की आम्हाला पाण्याची काय सांडवा सोडावा, पाणी काढून द्यावा। गेल्या वर्षी सारखी आमची दैन नाही हो, आमचं खाण्यापिण्याचं गेल्या वर्षी सगळं भिजलं। 2 महिने आम्ही बाहेर राहिलो, लेकरं बाळ आडी अडचणी साप घरात राहतात, तर ह्या वर्षी नाही हो असं। म्हणून आमचं हे मागणी आहे की ह्या वर्षी बी आमची काही सोय करावा त्याने, ह्या वर्षी बी आमची सोय करावा। आमच्या घरात साप येतात, लहान लहान लेकरं आहेत, म्हातारे आहेत, आजारी दुःख, तर हे आम्हाला तकलीफ होती। म्हणून आम्ही तुमच्याकडे मागणी मागतो की आमच्या ह्या वर्षी दैन नाही झाली पाहिजे। आमची मागणी अशी की आमचा पाण्याचा सांडवा काढून द्यावा। मागच्या वर्षी एवढा पाऊस झाला, त्या पावसामध्ये आम्हाला 2 महिने पावसात राहावं लागलं। त्या स्विमिंग पूलच्या कुलपा तोडल्या, इकडं क्वार्टरच्या सुक्या आम्ही कुलपा तोडल्या। बरं मागच्या वर्षी पाणी भरलं तर आमच्या कमरेच्या वर पाणी होतं। घरातलं आमचं खाण्यापिण्याचं साधं, आमच्या मुलांचे दप्तर, जे बी काय आमचं संसारिक उपयोगी सामान आहे ते पूर्ण खराब झालं। त्याच्यावेळी याच्या अगोदर आम्हाला 15-15 हजार रुपये काही मदत दिली गेली होती, यावेळेस मदतही कुठली दिली नाही आहे। मग दरवर्षी जर हेच होत आलं तर आम्ही गोरगरिबांनी काय करायचं, याचं उत्तर द्यायला पाहिजे ना आम्हाला। खूपच पाऊस, गेल्या वर्षी आमच्या इथं 2-3 महिने पाणी होतं घरांनी, सगळ्या लोकांना घर सोडून जाणं पडलं, खूप नुकसान झालेली आमची। गेल्या वर्षी सारखं यंदा भी नाही हो, म्हणून आमची अगोदरच मागणी आहे की यंदा आमची व्यवस्था करावी पाण्याची। ख़वातीन को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने के साथ साथ उनकी क़ानूनी रहनुमाई के लिए ज़िला जालना में हिरकनी महोत्सव के तहत एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया,
जहां माहिरीन ने ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की। ज़िला जालना में मुनक़िदा हिरकनी महोत्सव के मौके पर ख़वातीन की फलाह व बहबूद, सेहत, क़ानूनी रहनुमाई, रोज़गार और हुकूमती स्कीमों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। समाज, क़ानून, फ़नून लतीफ़ा और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली बासलाहियत ख़वातीन को हिरकनी एवार्ड से भी नवाजा गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की ही एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है। जबकि ज़िला कलेक्टर अशिमा मित्तल ने ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करना यकीनन एक चैलेंज है, लेकिन जब ख़वातीन एक मकसद के तहत मुनज़्ज़म हो जाती हैं तो समाज में तब्दीली का एक नया इनक़िलाब बर्पा कर सकती हैं। त्याच्यामध्ये जी शक्ती असतात त्याच्यापेक्षा जास्त शक्ती आपली मुठीमध्ये असतात। तर जर महिला सोबत येत आहे तेव्हा आपली शक्ती वाढतात आणि आपल्याला साहस पण मिळतात आणि आपल्याला हिम्मत पण मिळतात काही अजून चांगला आणि अजून मोठा करण्याचा। तर मला असं वाटतं की तुम्ही जे काम केलं महिलांना संघटित करण्याचा आणि महिलांसाठी कार्यक्रम आणि अवेअरनेस वेगवेगळी बाबीबद्दल आणि महिलांचा सत्कार करणे, तर मी त्याच्याबद्दल खरोखर तुमचं अभिनंदन करते आणि प्रत्येक पुरस्कारार्थी ज्यांना आज पुरस्कार मिळालेला आहे तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करते। व्यासपीठावरती उपस्थित सगळे मान्यवर, माझ्या समोर उपस्थित सगळी महिला आणि सगळे पत्रकार बंधू भगिनी जे आज इथे उपस्थित आहेत, खरोखर असे उपक्रम वारंवार जिल्ह्यामध्ये झाले पाहिजे। आज फक्त दोनच गोष्टी सांगते महिलांसाठी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और उसके माली लेन देन रैकेट का हिस्सा बनने के इल्ज़ाम में राजस्थान पुलिस ने हरसूल इलाके से एक शख्स को गिरफ़्तार किया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए मुबैना जासूसी और माली लेन देन के नेटवर्क के ख़िलाफ़ जारी तहक़ीक़ात में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। राजस्थान CID ने औरंगाबाद के हरसूल इलाके से रफ़ीक चांद शेख नामी एक मुश्तबा शख्स को गिरफ़्तार किया है। तफ्तीशी एजेंसियों के मुताबिक मुलज़िम पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने और दीगर अफराद के नाम पर मुतादिद बैंक अकाउंट्स खोलकर उन्हें ISI से मुंसलिक माली सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया है। इब्तदाई जांच में ये भी इंकशाफ हुआ है कि वो गुज़िश्ता 4 बरसों से मुबैना तौर पर ISI के राब्ते में था। इस मामले में जैसलमेर और आसाम के डब्रूगढ़ से भी 2 दीगर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। हुक्काम का कहना है कि तहक़ीक़ात जारी हैं और मज़ीद अहम इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। जालना रोड पर देर रात की जाने वाली लूटमार की मज़ाहमत करना एक 45 साला शख्स को महंगा पड़ गया। नामालूम हमलावरों ने तेज़धार वाले हथियारों से उसकी जान ले ली। मक़तूल की शनाख्त अब्दुल बासित ख़ान हकीम ख़ान के तौर पर हुई है, जो खैसर कॉलोनी का साकिन और कबाड़ का कारोबारी है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने न सिर्फ उस पर जानलेवा वार किया बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन और नकद रकम भी लूट कर फ़रार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया और CCTV फुटेज की मदद से मुलज़िमीन की तलाश शुरू कर दी। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान शहर में पेश आने वाला ये तीसरा कत्ल का मामला है, जिसके सबब शहरियान में खौफ व हिरास की फ़िज़ा पाई जा रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ FDA का क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 होटल्स के लाइसेंस किए गए मुअत्तल। मनरेगा की जगह मरकजी हुकूमत ने मुतारिफ करवाई बीबी ग्राम योजना। तालुका कन्नड़ के मौज़ा नादरपुर में मज़कूरा स्कीम का बाज़ाब्ता किया गया इफ्तिताह। वन में गाड़ियों के दाखिले को रोकने सिटी चौक में पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। गाड़ियों का दाखिला तो नहीं हुआ बंद, मगर बैरिकेड्स की आड़ में लगने वाली गाड़ियों से सड़क हो गई मजीद तंग। ट्रैफिक में रुकावट से शहरियान परेशान, तवज्जो का मुतालिबा। और
خواتین کو تندرست اور چاق و چوبند رکھنے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر مستحکم بنانے جالنا میں منعقد کیا گیا ہرکنی مہوتسو، ضلع کلکٹر اشیما متل نے کی حاضرین کی رہنمائی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔